Hello everyone, welcome to the chapter Working of Institution Part 2. So in this chapter we were discussing some institution. We discussed that why do we need institution and how do they work. So basically we are going to study some institutions. The first institution that we are going to study in detail is Parliament. So we are going to discuss Parliament in this session, and we are going to discuss the office of Prime Minister also, and the council of minister also. So I'll try to cover it in with a larger understanding with great depth. So let us start. So, two houses of parliament. As I have given you the brief description of the parliament, that parliament consists of the two houses, right? So, these two houses are known as one is called as Lok Sabha and the other is called as Rajya Sabha. The Lok Sabha is also known as the House of People, and Rajya Sabha is also known as the Council of State. So, parliament consists of these two houses, right? So, one house, that is the Lok Sabha, is directly elected by the people, and it exercises the real power on behalf of people, because in Lok Sabha the representative are directly elected by the people, so it is more powerful as compared to Rajya Sabha. In Rajya Sabha, the elected MPs, they are not directly elected by us. They are not directly elected by us. Therefore, Rajya Sabha exercises a very limited power. Exercise very limited power, right? So, which one is more powerful? Lok Sabha obviously more powerful. And what is the reason for Lok Sabha being powerful? The reason is that Lok Sabha has directly elected representative of people, so that is why it is more powerful. Next, the President of India, he is also the part of Parliament. See, the Parliament has three pillars. You can say Parliament has three pillars. One is President, other is Lok Sabha, third is Rajya Sabha. So Lok Sabha and Rajya Sabha that we have discussed. Okay, and what is the role of President then? सो जो भी रूल्स रेगुलेशन आता है, कुछ भी आता है, अगर वो पास होना है, उसको एक्ट बनना है, देन प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन इट, देयरफॉर ये प्रेसिडेंट की इसलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट कहा जाता है, इसीलिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट बोला जाता है, बिकॉज ही हैज़ टू साइन दी बिल्स, बिकॉज उसके साइन के बिना कुछ भी नहीं माना जाएगा. सो ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स, बट ऑन मोस्ट ऑफ द मैटर लोकसभा एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर. See, Rajya Sabha has some power, like some special power, like it can guide Parliament in case of state list, or whenever there is an issue which relates to the state, then the Rajya Sabha can speak on it, and Rajya Sabha can guard the demand of the states, and it can guard the states, right? सो राज्यसभा जो है वो इस काम में आ सकती है, लेकिन राज्यसभा ज़्यादातर जो है मोस्ट इश्यूज़ पे लोकसभा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है. राज्यसभा उतनी पावरफुल नहीं होती. जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जैसे मनी मैटर होते हैं. मनी इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी, राइट? किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड क्या है? मनी है. तो मनी रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, लोकसभा में ही डील किए जाते हैं, ना कि राज्यसभा में. सी, दे आर डेल्ट विद इन Lok Sabha, not in Rajya Sabha. So in that case also Rajya Sabha is not that powerful, and Lok Sabha is more powerful. Okay. So here is the photo of the our current president. What is the name of our current president? You must know, and you have to tell me. Okay. So next, any ordinary law to be needs to be passed by both the houses. But if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which member of both the houses sit together. The view of Lok Sabha is likely to prevail. Why? Because Lok Sabha has more members. See, Lok Sabha has 552 member. Lok Sabha has 552 member, and Rajya Sabha has 250 member, right? Rajya Sabha has 250 member. Now Lok Sabha obviously has more votes. It already is more than half
इट इज़ ऑलरेडी मोर देन हाफ द राज्यसभा, राइट। तो ये जो लोकसभा है वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत ही जाएगी, कोई भी अगर वोट पड़ेगा तो उसमें लोकसभा के तो लोग जीत ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके 550 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के कितने हैं, 250 मेंबर हैं। तो वोटिंग किसकी प्रिवेल करेगी, किसके पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करेंगे? ऑब्वियसली लोकसभा का पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करेगा। होता क्या है, होता ये है कि अगर कोई इशू है, कोई ऑर्डिनरी बिल है जो मनी बिल नहीं होता है, जो मनी बिल नहीं होता, क्योंकि देखो मैंने बताया मनी बिल के लिए तो लोकसभा ही अप्रोप्रिएट है, सिर्फ लोकसभा में ही वो सब कुछ होता है। मनी से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है तो उसमें लोकसभा का ही व्यू प्रिवेल करता है, वो तो रिटन चीज़ है। इसके बाद अगर कोई और इशू है जैसे कि जिसमें मनी रिलेटेड नहीं है बट कुछ और कंटेंट है, तो दोनों हाउस की रजामंदी होनी चाहिए। दोनों हाउसेस बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। इन केस अगर दोनों में रजामंदी नहीं हो पाती है, देन द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सेशन। इन सच अ सेशन ऑब्वियसली लोकसभा हैज़ मोर नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ वाई लोकसभा's व्यू विल प्रिवेल and Rajya Sabha view will be subdued, it will be suppressed, right, because Rajya Sabha is less in number, Rajya Sabha members are less in number, right. So that is the case. Next, लोक सभा जो होता है, लोक सभा के पास अभी मैंने आपको बताया मनी पावर रहती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न जो लोकसभा का है वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, the council of minister is responsible to only Lok Sabha. The council of minister is only responsible to Lok Sabha. That is not responsible to Rajya Sabha. The council of minister is not responsible to Rajya Sabha. It is responsible only to Lok Sabha. So that also adds to its credibility. See, these are two views from green one is from Lok Sabha and red one is from Rajya Sabha. These are some views from Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. So next thing that we are going to discuss is about, we have discussed the parliament, legislation part हो गया कि legislate कैसे करते हैं, law कैसे बनता है, parliament में law बनता है, parliament में law बनाने की पूरी procedure होती है। parliament में क्या होगा, debate होगा किसी law के ऊपर, पूरा discussion होगा। ये देखो सारे लोग यहाँ पे debate कर रहे हैं, discuss कर रहे हैं कि ये law कैसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। उसके बाद ये बिल प्रेसिडेंट से साइन होने जाएगा, प्रेसिडेंट इसको साइन कर देगा, वो बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। दिस इज़ हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। इस प्रोसीजर के थ्रू एक बिल एक्ट बन जाता है, राइट। अब जब वो एक्ट बन गया है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब वो एक्ट तो बना दिया कि ठीक है जीएसटी के रूल लगा तो दिए, अब वो रूल को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो वो काम है, रूल इम्प्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव्स का, रूल इम्प्लीमेंटेशन का काम है एग्जीक्यूटिव्स का। ओके। At different level of any government, functionary take day-to-day decision, but do not exercise supreme power on the behalf of the people. All these functionary are known as executive. This executive is in charge of execution of policy in the government. Thus, we talk about the government, we usually mean executive. See, when we talk about government, we talk the working part, we talk about the working part कि जो policies implement करता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। We do not talk about parliament, है ना। हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने ये करा, गवर्नमेंट ने वो करा, मतलब जो पार्ट कर रहा है अपनी डेमोक्रेसी का, ऐसा पार्ट जो कुछ काम कर रहा है, जो काम करते हुए हमें दिखता है, जो रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें दिखता है, तो वो क्या, कौन है? वो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जिसको लोग चुनते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव होता है जिसको लोग चुनते हैं। ये जैसे हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, जैसे हम अपने एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, तो इन लोगों को हम चुनते हैं। सो दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल, क्योंकि वो ये पॉलिटिक्स से आए हैं, ये लोग पॉलिटिक्स से आए हैं, सो वी कॉल देम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वहीं पे जो दूसरे हाथ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको मेरिट बेस पे चूज़ किया जाता है, उनको मेरिट की बेस पे चूज़ किया जाता है कि अगर आप एकेडमिकली, अगर आप बहुत ही साउंड हो, बहुत ही अच्छे हो, आपकी मेरिट मतलब देखने लायक हैं, आपकी चीज़ें बिल्कुल टेक्निकली आप बहुत कुछ जानते हो, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो इस तरीके की मेरिट जो होती है उस मेरिट के बेस पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव को चूज़ किया जाता है। जो इसका नाम परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों है? इसका नाम परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए है क्योंकि ये जो होते हैं इनको लाइफ टर्म के लिए सर्विस में रखा जाता है।
चाहे सरकारें चेंज होती रहें, कुछ होता रहे, लेकिन ये लोग चेंज नहीं होते। ये लोग निरंतर सर्विस में रहते हैं, ये लोग सर्विस प्रॉपरली करते ही रहते हैं। चाहे कोई सी भी सरकार आए, कोई सी भी सरकार जाए, इनको कोई लेना देना नहीं होता। ये सरकार चलाने में हेल्प करते रहते हैं। देखो क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन बन जाते हैं, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन बन जाने के बाद अब मान लो जीएसटी आ गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो जीएसटी की बात है, तो जीएसटी को बनाने में तो ठीक है, बना दिया, रूल बना दिया कि भाई जीएसटी लगेगा। अब ये रूल जो था, नेता तो बहुत सारे अनपढ़ भी होते हैं, दे आर ऑल्सो इलिटरेट, राइट। वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, कई नेता होते हैं ना ऐसे। और हो सकता है कि नेताओं को ज़्यादा पता ही ना हो टैक्स के लॉ के बारे में, या किसी भी इन चीज़ों के बारे में। ज़रूरी थोड़ी है नेताओं को पता हो, राइट। वो स्पेशलिस्ट थोड़ी होते हैं। तो फिर ये ऐसे लॉज बन कैसे जाते हैं, इतने डिटेल में कैसे बन जाते हैं, ऐसा सब कुछ कैसे बन जाता है पूरा डिटेल में, कि यहाँ से इतने परसेंट लॉ वो टैक्स लेना है, यहाँ से इतने परसेंट टैक्स लेना है, और ऐसे कैलकुलेट होगा, और इस कंपनी ये इतना करेगी, इतना करेगी। तो ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये सारी ये ऑफिसर्स कैलकुलेट करके देते हैं। जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, ये सारे ये काम करके देते हैं। जैसे आईआरएस ऑफिसर है, वो टैक्स के बारे में पूरा देखेगा, कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर्स जो होंगे ये सब देखेंगे कि कैसे टैक्स को वसूलना है, कैसे करना है। कलेक्टर देखेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है। इस तरीके से ये जो ऑफिसर्स होते हैं, यही लोग फाइनली चीज़ें बना के देते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, वो तो केवल अपना व्यू दे देता है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। अब जैसे कि उस व्यू में पूरी डिटेल कौन फिल करता है, कि कैसे हम, क्या चीज़ हम लगाएंगे, कैसे हम टैक्स लगाएंगे, क्या चीज़ करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारा जो आगे का डिस्कशन है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव करता है। वो सब कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव करता है। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, इनको हम सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट। आपने सुना होगा आईएएस आईपीएस जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट, ठीक है। ये सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। They are called permanent executive. Why is the minister more powerful than the civil servant? See, अभी मैंने आपको बताया कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो ऑब्वियसली काफ़ी उनकी वो होती है, क्या बोलते हैं, एक्सपर्टीज़ होती है अपने फील्ड में, और वो मेरिट के बेस पे चुने गए होते हैं, बिल्कुल हाई एकेडमिक स्किल और इन सब चीज़ों पे चुने गए होते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा पावर दे दो, ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इनको ज़्यादा पावर दे दो। मिनिस्टर्स को इतनी पावर क्यों दी हुई है? सो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको लोगों ने चुना होता है। एंड बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, तो लोगों से ऊपर तो कुछ भी नहीं है कि नहीं। वी आर अ डेमोक्रेसी ना, सो लोगों से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। रूल ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, है कि नहीं। ये जो सिविल सर्वेंट हैं, ये तो पढ़ लिख के खुद बने हैं, राइट। इनको लोगों ने चूज़ नहीं किया है, इनको लोगों ने चूज़ नहीं किया है। तो लोगों को चूज़ किसने किया है? लोगों को चूज़ लोगों ने चूज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को किया है, जो नेता होते हैं हमारे। दैट इज़ वाई जो नेता होते हैं उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है। दैट इज़ वाई नेता होते हैं उनको ज़्यादा मैं समराइज़ कर देती हूँ। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन सिविल सर्वेंट? सिंपली इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ रूल ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, राइट। तो लोगों ने किसको चुना है, सिविल सर्वेंट को या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को? ऑब्वियसली पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, एमपी एमएलए जो होते हैं उनको चुना है, ना कि सिविल सर्वेंट को, है कि नहीं। तो लोगों से ऊपर तो नहीं हो सकते ना सिविल सर्वेंट, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर कौन है? लोग हैं। तो इसीलिए लोगों ने जिसको चुना है उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर होगी। दैट इज़ वाई सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास होगी। फाइनली यही लोग होते हैं जो मिनिस्टर होते हैं, ये आंसरेबल होते हैं, कि ये लोगों को आंसर करें कि भाई हमने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है। सिविल सर्वेंट होते हैं वो आंसरेबल लोगों को नहीं होते हैं। सिविल सर्वेंट लोगों को आंसरेबल नहीं होते हैं, लेकिन मिनिस्टर जो होते हैं दे आर आंसरेबल टू पीपल, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना है। तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसीलिए जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो मोर पावरफुल होते हैं देन कंपेयर टू सिविल सर्वेंट। एज कंपेयर टू सिविल सर्वेंट दे आर मोर पावरफुल।
नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, मतलब सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव है ही हमारा, कि वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करता है, सबसे ज़्यादा वही करता है, उनकी राय पे प्रेसिडेंट करते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? सी प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी or the coalition of party that commands a majority in लोक सभा एज प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसकी मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, जिस पार्टी के लीडर की मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, वो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, वो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। ओके, अगर किसी केस में मान लो किसी सिंगल पार्टी को वोट मिलता ही नहीं है, मेजॉरिटी मिलती ही नहीं है, किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी मिली ही नहीं है, तो जिसके पास मेजॉरिटी सब, उन बाकी सब में किसके पास सबसे ज़्यादा है, प्लूरल वोट किसके पास है, प्लूरैलिटी किसके पास है, प्लूरैलिटी मतलब ज़्यादा किसके पास है, और कौन मतलब सरकार बनाने की पोजीशन में है, फिर उससे बोला जाता है कि तुम सरकार बना के देख लो। तो नहीं तो फिर तो डिज़ोल्व कर देंगे और फिर दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है कि वो फिक्स टेन्योर होगा, वो तब तक बन सकता है, तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक जो लोकसभा है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस रखे, जब तक लोकसभा उसके अंदर मेजॉरिटी रखती है, जब तक लोकसभा उसको सपोर्ट करती है। जब मैंने अभी जैसे बोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो लोकसभा को आंसरेबल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को आंसरेबल होती है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है, तो ही इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू ऑब्वियसली लोकसभा। तो जब तक लोकसभा उसे सपोर्ट करेगी तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अगर मान लो कल कोई प्राइम मिनिस्टर था, आज उसको सपोर्ट करना किसी ने बंद कर दिया, तो वो उसी टाइम उसको सपोर्ट करना अगर लोकसभा में बंद हो गया और कोई वोट पड़ता है और उस वोट में उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि भैया क्या हमें सपोर्ट पूरा है या नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि जो लीडर मतलब मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट है, मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें हैं, सिर्फ वो ही इंसान गवर्नमेंट बना सकते हैं, वही लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इसीलिए फिर जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है, बताता है कि किस किस को उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चुनना है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है जो मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर से जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स रहते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये अपना होम मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, ये जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ ये हो गई। इनमें भी ओके, अ पर्सन हु इज़ नॉट, ये चीज़ याद रखने की है, एक मिनिस्टर बनने के लिए आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको कोई मिनिस्टर बनना है तो आपको पार्लियामेंट का मेंबर होना ज़रूरी है। इन केस आपको मिनिस्टर बना दिया गया है और आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो, तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर अपने आप को पार्लियामेंट का मेंबर बनाना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर अंदर अपने आप को पार्लियामेंट का मेंबर बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ दी शर्त, ओनली कंडीशन कि अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आना है तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा। सो अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं और फिर भी आपको मिनिस्टर बना दिया है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। सो दिस वाज इट इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन other offices of the Indian democracy. So thank you so much.